Good morning, students. So today we'll discuss the next assignment, assignment 1, and along with that I'm going to discuss the third assignment also. So let me start. The first question here, the first question is how the pollen grains are protected from the adverse climatic condition. तो बच्चा आपको यहाँ पर आंसर में मैं आपको आउटलाइन दूंगी, आपको अपने वर्ड्स में आंसर लिखने की pollen grains कैसे प्रोटेक्ट होती है adverse condition, climatic condition से. So in this pollen the exine is formed of sporopollenin, and this sporopollenin is what nature wise it is rigid, tough and हार्ड सब्सटेंस. कि ये एक्साइन जो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, ये स्पोरोपोलेनिन रिजिड, टफ एंड हार्ड सब्सटेंस होता है which is not easily degraded by enzymatic action, जो कि enzymatic action से जल्दी डिग्रेड नहीं होता. and this is the reason, because of this यहाँ पर the sporopollenin it provide protection from, तो ये क्या करता है, it provide protection from adverse climatic condition and also from insect. तो इस स्पोरोपोलेनिन की वजह से जो pollen grain है they remain insect resistant and protected from the adverse condition. Now the second question is you have to give the example of clistogamous flower. So बच्चा यहाँ पर second question का A part clistogamous flower, जहाँ पर reproductive part जो है वो expose नहीं होते हैं environment में, बहुत बार कर चुके हैं हम. तो इसका example है हेमेलिया है, जैसे pea plant है, then your viola is there and commenalia हमने बात की थी, commenalia जो है, all these plants are your clistogamous in nature. Then the second one is flower showing heterostyly, जहाँ पर स्टिग्मा की जो लेंथ है वो फ्लावर में डिफर हो. हेट्रोस्टाइली, हेट्रो मीन्स डिफरेंट स्टाइल की लेंथ. सो यहाँ पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं लाइक oxalis is there and I have given the example of prime rose. This prime rose is also called primula. Then the next one is multicarpellary syncarpous pistil. So यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ये हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, पैपेवर. देन मल्टीकार्पलरी एपोकार्पस की पिस्टल जो है फ्री है, बहुत सारी हैं और फ्री हैं. सो द एग्जाम्पल हियर इज मिशालिया. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why the development of embryo sac is called monosporic. कि एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक क्यों कहा जाता है. सो हियर द थर्ड आंसर इज इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक बिकॉज complete embryo sac is formed from single functional मेगास्पोर. क्योंकि मोनोस्पोरिक का मतलब क्या है, मोनो मतलब एक ही स्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियोसेक बना है, तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर से कंप्लीट एम्ब्रियोसेक का फॉर्मेशन होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस द डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, you have to justify the statement, and the first statement is Geitonogamy is cross pollination although it is autogamy. आपको इसके साथ साथ एक्सप्लेन करना है. पहले इन्होंने कहा Geitonogamy is cross pollination, तो yes Geitonogamy is cross pollination as the transfer of pollen held between two flowers. क्योंकि यहाँ ट्रांसफर जो है pollen का ट्रांसफर ऑफ pollen जो है वो किसके, दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है. So that is why it is called cross pollinating. But यहाँ पर the two flowers are of same plant, तो वो दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पर है, and because of that reason they are genetically similar, and as they are genetically similar we are calling them autogamous flower, or we are calling that pollination is self पॉलिनेशन. सो जिटिनोगैमी में क्योंकि दो फ्लावर्स के बीच में ट्रांसफर है तो क्रॉस पॉलिनेशन है, बट क्योंकि दोनों फ्लावर आपके एक ही प्लांट से अटैच है
सो यहाँ पर जेनेटिकली दोनों फ्लावर क्या है, सेम है. सो इट इज टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. Then the next is apomixis is asexual reproduction. Yes, है. Why? Because in asexual reproduction, what is happening? यहाँ पर आपका फर्टिलाइजेशन हेल्ड नहीं होता. तो एपोमिक्सिस इज व्हाट? इट इज द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन. पहले आपको इसकी डेफिनेशन देनी है. फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एज फर्टिलाइजेशन डू नॉट हेल्ड, सो इट इज अ काइंड ऑफ asexual reproduction. But without fertilization, embryo is formed within the seed. Seed के अंदर embryo form हो रहा है, and that embryo is the offspring for the next generation. So it mimic what? Sexual reproduction. तो यहाँ पर embryo बना है and that embryo is diploid. तो यहाँ embryo form हो रहा है but without fertilization, इसलिए है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो asexual होगा, बट बिकॉज एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है तो हम क्या कहेंगे इसे? इट्स अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये हम लास्ट क्लास में आपका डिस्कस कर चुके हैं. विच सीड्स आर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर फार्मर्स, हाइब्रिड और एपोमिक्टिक. तो बच्चा एपोमिक्टिक है. वाई? बिकॉज इन हाइब्रिड सीड्स द कैरेक्टर्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर इन द गोइंग जनरेशंस. की जनरेशंस में आपका करेक्टर क्या हो जाते हैं? सेग्रीगेट हो जाते हैं. बट इन एपोमिक्टिक एज अ सीड्स आर फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन. यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नहीं तो यहाँ वेरिएशंस भी नहीं आएंगे एंड करेक्टर्स जो है दे डू नॉट सेग्रीगेट इन द अपकमिंग जनरेशन. सो यहाँ पर इसलिए एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं दे आर बेटर देन द हाइब्रिड. हाइब्रिड आपको हर साल परचेज करने पड़ते हैं, जबकि एपोमिक्टिक से आप कुछ जनरेशन तक प्योर लाइंस जनरेट कर सकते हैं. नाउ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग. आपको यहाँ पर एग्जाम्पल देना है किसका? द फर्स्ट इज मराइन एल्गा. तो यहाँ मराइन एल्गा जो कि क्या शो कर रहा हो? हाइड्रोफिली. तो बच्चा हाइड्रोफिली में आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जोस्टेरा. ये मराइन एल्गा है. देन एपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. तो एपी हाइड्रोफिली के अंदर आपका जोस्टेरा भी आता है और सेरिरेटोफाइलम भी आता है. एंड इफ वी टॉक अबाउट हाइपोहाइड्रोफिली तो यहाँ पर आ जाएगा वेलिसिनेरिया. सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एपीहाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली. रोल ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस क्या है? सो बच्चा यहाँ पर ये भी हम बात कर चुके हैं. टू गाइड द अपकमिंग पॉलन ट्यूब. अपकमिंग पॉलन ट्यूब को गाइड करना कि उसे सिनर्जिड में एंटर करना है, दैट इज द रोल ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस. वन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल पॉलन क्या हो जाएगा? रोज. एंड एलर्जिक पॉलन आपको एक लिखवाया है मैंने, पार्थेनियम. दिस इज एन एलर्जन और ये हे फीवर कोज करता है. पेन क्या है? इट स्टैंड फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. एंड व्हाट इज इट्स वेट? ये आपका क्या बनाएगा? पेन ही आपका डिवाइड होकर बनाता है एंडोस्पर्म. नाउ व्हाट इज स्क्यूटैलम? स्क्यूटैलम इज एंडोस्पर्म ऑफ मोनोकोट. ग्रास फैमिली के एंडोस्पर्म को ही क्या कहा जाता है? स्क्यूटैलम कहा जाता है. ओके, so this is assignment 1. Now coming to the third assignment. The first question is expand MTP. MTP is what? It is medical termination of pregnancy. प्रेगनेंसी के मेडिकल टर्मिनेशन को कहते हैं या फिर इसी को नाम दिया जाता है अबॉर्शन. इसे कब कंसिडर किया जाएगा? सेफ. तो इसे सेफ कंसिडर किया जाता है इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि स्टार्टिंग 3 मंथ जो है वो होते हैं आपके सेफ फॉर द टर्मिनेशन. ठीक है, ट्राई मीन्स होता है 3, तो शुरुआती 3 महीने जो होंगे उस टाइम पर ये क्या होती है? सेफ होती है. नाउ 2 STDs विच आर नॉट कंप्लीटली क्योरेबल. सो बच्चा HIV है, हेपेटाइटिस बी है, एंड
जेनाइटल हर्ब्स है। यहाँ पर ये चेक कर लेना, एनसीईआरटी में एक ही को दे रखा है, आइदर जेनाइटल हर्ब्स है या फिर आपका वर्ड्स है, तो आपको एनसीईआरटी प्रिफर करना होता है बच्चा। तो यहाँ पर जेनाइटल हर्ब्स देना। मैंने आपसे मेंशन किया था लास्ट वीडियो में, वर्ड्स जो है वो भी आपका नॉन क्योरेबल ही है, बट आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, क्योंकि नीट में ये दोनों ऑप्शन एक साथ आए थे, तो दोनों अगर एक साथ आते हैं तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है। नाउ यू हैव टू अरेंज द हार्मोन इन सीक्वेंस सिक्रेटेड इन द प्रेग्नेंट वुमेन। ये मैं ऑप्शन देना भूल गई आपको क्वेश्चन में। तो ये आपके हार्मोन है 4, तो प्रेग्नेंट वुमेन में कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में सिक्रेट, ये आपको यहाँ पर करना है। सो पहले आपका होगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग ग्राफियन बनेगा, और यहाँ से फिर एग रिलीज होने के लिए सेकेंड आपका बनेगा LH, इससे ओव्यूलेशन होगा। उसके बाद प्रेगनेंसी होते ही यहाँ पर पहले महीने में ही बन जाएगा SCG, जो कि प्रेगनेंसी टेस्ट में चेक करने के लिए हम यूज करते हैं। मतलब पहले मंथ के जैसे प्लेसेंटा का कनेक्शन बनता है ना, प्लेसेंटा फॉर्म होते ही आपका SCG बनना शुरू हो जाता है। सो 1 मंथ भी नहीं लगता, कुछ विद इन वीक्स में ही आपका सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिलैक्सिन आपका होगा पार्चुरेशन, मीन्स बिल्कुल 9th मंथ में जब डिलीवरी टाइम होता है, इन दैट वीक यहाँ रिलैक्सिन सिक्रीट होता है। थोड़ा बहुत यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवा सकता है, बट मेन इसका काम होता है जो मेमोरी ग्लैंड होती हैं उनकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ताकि लैक्टेशन जो है वो प्रॉपर हो। तो मेमोरी ग्लैंड की मसल कॉन्ट्रैक्शन करवाया, लैक्टेशन में हेल्प कर रहा है। नेम द स्टेजेस इन ह्यूमन फीमेल जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो बच्चा प्लेसेंटा बन चुका है यानी प्रेगनेंसी है, और प्रेगनेंसी के टाइम कॉर्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा, तो कौन सी स्टेज आ जाएगी, प्रेगनेंसी की स्टेज आ जाएगी। ठीक है। हाउ डू ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक्ट इन ह्यूमन फीमेल में ये किस तरह से वर्क करती है, यानी आपको प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल में फर्स्ट प्रिंसिपल है ये ओव्यूलेशन जो है उसे इनहिबिट कर सकती है, फाइन। सेकेंड है यहाँ पर जो हार्मोन रिलीज होते हैं, तो ये आपका हार्मोन इम्बैलेंस कॉज करती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस यहाँ पर इम्प्लांटेशन क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है। एंड थर्ड इनका तरीका है जो फीमेल वजाइनल ट्रैक है, मीन्स सर्विक्स है, सर्विक्स के अंदर म्यूकस की थिकनिंग करना, ताकि पेनिट्रेशन जो है स्पर्म का वो प्रॉपर ना हो पाए। तो ये 3 तरीकों से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव वर्क कर सकती है। फर्टाइल पीरियड आपको बताना, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर तो हम कर चुके हैं, 10 to 17 डेज जो होते हैं दे आर हाईली फर्टाइल डेज, इन्हीं को हम फर्टाइल डेज कहते हैं। नॉन स्टेरॉइडल कल ही डिस्कस किया है, किसके बारे में, सहेली के बारे में। 5 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। नॉन मेडिकेटेड IUDs आपको मैम ने पढ़ाया होगा लिप्स लूप के बारे में, सो इट इज नॉन मेडिकेटेड। हार्मोन रिलीजिंग में आपका जेस्टासर्ट है, एंड वन इज LNG-20। इस LNG-20 से बचा एक हार्मोन या केमिकल कह सकते हैं, हार्मोन सिक्रीट होता है, लिवेनो एस्ट्रोजन होता है, और वो कन्वर्ट होता है प्रोजेस्टिन में। तो यहाँ पर ये एक्चुअली प्रोजेस्ट्रोजन का जो हार्मोन लेवल है बॉडी में उसे चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, क्योंकि अगर कम है तो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा, ज्यादा है तो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस होता है हार्मोन का। देन आपका व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी बाय अनइक्वल डिवीजन। तो ये अनइक्वल डिवीजन से जो टाइनी फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो यहाँ बच्चा सिग्निफिकेंस हम बात कर चुके हैं। इसका सिग्निफिकेंस होता है टू मेंटेन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ सेकेंडरी oocyte।
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जो है सेकेंडरी oocyte में मेंटेन रखना, विच विल सून अंडरगो मियोसिस 2। तो यहाँ पर ये मियोसिस 2 में जाने वाला है, एंड ड्यूरिंग दिस फेज इट डू नॉट हैव टू सिक्रीट मच साइटोप्लाज्म। अनइक्वल होने की वजह से ज्यादा साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte में रहता है, और इस सेकेंडरी oocyte को और साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनली फॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्ट मियोसिस 2 में एंटर कर सकता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपको रीजन देना है कि कॉर्पस ल्यूटियम परसिस्ट करता है ड्यूरिंग विच फेज इन प्रेग्नेंस फीमेल। एक तो आपको परसिस्टेंस का रीजन देना है कि कॉर्पस ल्यूटियम क्यों परसिस्ट करता है और कौन से फेज में। तो फेज हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पढ़े हैं, अगर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और परसिस्ट करता है तो वो होता है ल्यूटियल फेज। और इसका काम क्या है, क्यों बना, तो ये आपका प्रोजेस्टेरोन का क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनिंग होगी, थिक होगी, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन रह पाए। तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, थिकनिंग होगी। नाउ फॉर 100 सीड, अब बच्चा इस कॉन्सेप्ट के लिए पहले हमें ओवरऑल पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं। कुछ फॉर्मूलाज हम बता सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप अपना लॉजिक लगा सकते हैं यहाँ पर। तो पहले आपसे एक चीजें हम शेयर कर लेते हैं। हमने यहाँ पर मेल डेवलपमेंट और फीमेल डेवलपमेंट पढ़ा प्लांट में, तो हमने बात की थी एमएमसी। पहले मेल की बात करते हैं कि एक पॉलन बनाने के लिए माइक्रोस्पोर मदर सेल था, और ये गया मियोसिस में। जब ये मियोसिस में गया तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया पॉलन टेट्राड, यानी कि 4 सेल एक साथ थे, और ये पॉलन टेट्राड आपका रिलीज होकर क्या बनाता है, 4 माइक्रोस्पोर बनाए। ओके, अब ये माइक्रोस्पोर आपके जाते हैं माइटोटिक डिवीजन में। अब यहाँ पढ़ेंगे कितने माइटोटिक, देखो पहला माइटोटिक हुआ तो वेजिटेटिव और जनरेटिव बने, फिर दूसरा माइटोटिक हुआ तो जनरेटिव टूटकर 2 मेल गैमेट में कन्वर्ट हुआ, यानी कि 2 माइटोटिक हुए। तो 2 माइटोटिक से यहाँ पर क्या बन गई, एक पॉलन बन गई। अब ये 4 माइक्रोस्पोर थे, मैंने डेवलपमेंट एक पॉलन की दिखाई है, ये एक पॉलन के लिए आपके 2 माइटोटिक डिवीजन हुए, ठीक है। सो यहाँ पर बच्चा अगर मैं यहाँ पर देखूं अगर मैं यहाँ पर कंक्लूड करूं, अगर आपसे पूछे जाए कि यहाँ कितने मियोसिस हुए हैं, तो यहाँ पर मियोसिस कितना हुआ, मियोसिस फॉर एक पॉलन, आपके एक पॉलन के लिए पूछा है। अब देखो यहाँ पर जब मियोसिस हुआ तो आपको कितने मिली थी, 4 माइक्रोस्पोर बने, लेकिन हमें तो सिर्फ एक पॉलन के लिए बतानी है। तो यहाँ पर एक मियोसिस था, 1 मियोसिस था, कितने के लिए, 4 पॉलन के लिए। हमें बताना है एक पॉलन का, तो एक पॉलन किसके बराबर हो जाएगा, 1/4 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो 1/4 हो जाएगा। अगर आपको बताना है 100 तो 1/4 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका एक पॉलन के लिए जो है 1/4 आपका हुआ। एक मियोसिस से 4 पॉलन बनी थी, तो एक पॉलन किससे बनी हुई होगी, आपका 1/4 हम ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आते हैं हम, इसके अलावा आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे पूछा गया कि सीड फॉर्म होनी है, तो सीड फॉर्म होने के लिए आपको क्या चाहिए, एक पॉलन ग्रेन चाहिए, और इसे फ्यूज करवाना है आपको एक ओवम के साथ, ठीक है, ये कराना है। तो एक ये फॉर्मूला होता है, 1 सीड के लिए आपको 1 ओवम और 1 पॉलन की रिक्वायरमेंट होती है। फाइन, अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ये तो हमने बात की मेल की, हम कुछ फॉर्मूले लिखेंगे लास्ट में। ये हमने बात की मेल की। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीमेल की, तो मेगास्पोर मदर सेल सेम वही हुआ था, मियोसिस हुआ था, और यहाँ पर बना था मेगास्पोर। 4 बने थे, लेकिन एक ही मेगास्पोर फंक्शनल रहा था, बाकी 3 हो गए थे डीजेनरेट। तो इस एक मेगास्पोर में फिर
3 माइटोटिक डिवीजन हुए बच्चा, 8 न्यूक्लियस बने थे ना, तो एक बार डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस, फिर दूसरी बार हुआ तो 4 न्यूक्लियस और तीसरी बार हुआ तो 8 न्यूक्लियस। तो 3 माइटोटिक डिवीजन हुए, तब आपका यहाँ पर एम्ब्रियो बन गया था। और एक एम्ब्रियो के अंदर क्या होता है, एक ओवम या एक एग होता है। अभी तो एक एग चाहिए हमें, तो यहाँ पर 3 माइटोटिक डिवीजन से आपका क्या मिल गया है, आपको एक एम्ब्रियो सेक, या फिर मैं कहूं एक क्या मिल गया है, एग मिल गया है। फाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर साथ साथ फॉर्मूला बनाते हैं। एक फॉर्मूला तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है बच्चा, अगर 100 सीड फॉर्मेशन करने हैं तो आपको कितनी पॉलन ग्रेन चाहिए। अभी हमने बात की, हमने क्या कहा, फर्स्ट लेते हैं, हमने क्या कहा यहाँ पर कि अगर आपको एक सीड बनानी है तो उसके लिए आपको एक पॉलन चाहिए और उसको आपको किसके साथ फ्यूज कराना है, एक एग के साथ फ्यूज कराना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं आपको कितनी सीड बनानी है, 100 सीड बनानी है। तो 100 सीड के लिए आपको क्या चाहिए, 100 पॉलन चाहिए। तो 100 पॉलन और कितने ओव्यूल, ओव्यूल यानी एग की बात कर रहे हैं, तो 100 ही आपको क्या चाहिए, ओव्यूल चाहिए। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या आ जाएगा, 100, दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा, 100। अब तीसरा बात करते हैं, एमएमसी कितनी रिक्वायर्ड है। इन्होंने ये नहीं बताया कि मेल एमएमसी चाहिए या फीमेल, यानी कि हम दोनों का टोटल बताना है हमें। तो यहाँ पर सेकंड हम बात करते हैं टोटल एमएमसी, टोटल एमएमसी। अब टोटल एमएमसी कैसे आएगी, एक तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा एमएमसी कितने के लिए, एमएमसी आपको देखनी पड़ेगी पॉलन के लिए, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको किसके लिए देखनी पड़ेगी, एमएमसी आपको देखनी पड़ेगी किसके लिए, एग के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं बच्चा, हमने यहाँ पर बात की कि एक एमएमसी से, यही देखो नोट की फॉर्म में कर देती हूँ, एक एमएमसी यानी माइक्रोस्पोर, मेल की बात करें, माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपका कितनी यहाँ पर बनी थी, 4 पॉलन बनी थी, है ना। अब यहाँ पर आपका 4 पॉलन बनी कितनी, एक एमएमसी से। आपने यहाँ पर बात की 4 पॉलन की, तो एक पॉलन अगर मैं देखूं, एक पॉलन तो 1/4 कर सकती हूँ मैं, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको कितनी पॉलन दी है, 100 पॉलन दी है। तो 100 पॉलन के लिए कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल चाहिए, कैसे निकालोगे, 1/4 इंटू 100 हो जाएगा। तो ये कितनी आ जाएगी, 25। तो यहाँ पर आपकी 100 पॉलन, क्योंकि इन्होंने कहा है ना 100 सीड है, 100 सीड के लिए आपको मेल पॉलन कितनी चाहिए, तो 100 सीड बनाने के लिए आपको चाहिए एमएमसी कितना, एमएमसी 25। क्योंकि देखो एक एमएमसी से 4 बनेंगे, तो यहाँ 25 इंटू 4 अगर मैं करूँ तो कितने बन जाएंगे, 100 बन जाएंगी पॉलन, और मुझे कितनी चाहिए, 100 पॉलन ही चाहिए। तो यहाँ पर 25 आ गए। अब यहाँ बात करते हैं एमएमसी एग के लिए। तो बच्चा यहाँ पर हमने बात की कि एक एमएमसी यानी अब ले रहे हैं हम मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल से एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बना था और एक फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बना, एक ही एग बना था। तो एक एग बनाने के लिए, एक ओवम के लिए आपको एक एमएमसी चाहिए। अब यहाँ पर कितने एग हैं, 100 सीड के लिए हमें 100 एग चाहिए। तो यहाँ पर आपका अगर एक एमएमसी से एक एग बन रहा है तो 100 एग कितने से बनेंगे, 100 एग 1 इंटू 100 एमएमसी से। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 एमएमसी। तो यहाँ एग के लिए कितना आ गया, 100। अब टोटल एमएमसी पूछा है तो टोटल एमएमसी यहाँ कितना हो जाएगा, 125। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा क्या, कितना चाहिए, 125 चाहिए। खाली मेल के लिए होता तो हम 25 लेते, खाली एग के लिए होता तो हम 100 लेते। अब देख लो एक एमएमसी से एक एग बन रहा है, तो इसे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 100 एमएमसी से क्या बनेगा, 100 एग बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर 100 एग ही हमें चाहिए 100 सीड के लिए। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। ओके, अब आते हैं सी पार्ट है बच्चा, ये एमएमसी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे माइटोटिक डिवीजन कितने चाहिए 100 सीड बनाने के लिए। तो यहीं पर देखते हैं, पहले हम माइटोटिक निकालते हैं,
पॉलन, 100 पॉलन के लिए कितने चाहिए, फिर हम निकालेंगे 100 एग के लिए कितने चाहिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें चाहिए क्या, माइटोटिक डिवीजन, टोटल माइटोटिक डिवीजन। तो हमें पहले देखना पड़ेगा 100 पॉलन के लिए आपका माइटोटिक डिवीजन कितना चाहिए, और फिर हमें देखना पड़ेगा 100 एग के लिए आपका माइटोटिक डिवीजन कितना चाहिए। तो यहाँ देख लेते हैं बच्चा, अब 100 एग हम बात कर रहे एक एग के लिए। देखो यहाँ पर अभी हमने बात की, ये था एग, तो यहाँ पर आपका 3 माइटोटिक डिवीजन से कितने बने थे, एक एग बना था। यहाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 100 एग। अगर एक एग बनने के लिए आपको 3 माइटोटिक डिवीजन लगते हैं, तो 100 बनने के लिए कितने लगेंगे, 100 इंटू 3 लगेंगे भाई, है ना। एक एग में 3 माइटोटिक डिवीजन अगर लगते हैं तब आपका जाके एक एग बन रहा है, तो 100 में कितना लगेगा, 100 इंटू 3, यानी कि कितने माइटोटिक डिवीजन, 300 हो गए। अब पॉलन में देखते हैं, पॉलन में आपका 2 माइटोटिक डिवीजन से एक पॉलन बनी। अगर एक पॉलन बनने के लिए आपको 2 माइटोटिक डिवीजन की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ पर 100 पॉलन के लिए कितने हो गए, 2 इंटू 100, यानी कि 200 माइटोटिक डिवीजन। तो टोटल माइटोटिक डिवीजन कितने हो जाएंगे बच्चा, 200 फॉर पॉलन प्लस 300 फॉर एग, और टोटल यहाँ पर क्या हो जाएंगे 500, ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ टोटल माइटोटिक डिवीजन आपका क्या हुआ 500। फिर बात करते हैं हाउ मच माइक्रोस्पोर रिक्वायर्ड, 100 सीड के लिए माइक्रोस्पोर हम बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन की। तो ये तो हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही निकाल चुके हैं, कितने आपको पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर चाहिए होंगे। आपका यहाँ पर एक पॉलन किससे बनती है, एक माइक्रोस्पोर से बनती है, तो 100 पॉलन चाहिए, तो कितने आपका चाहिए 100 माइक्रोस्पोर, है ना। यहाँ पर देखो ये था पोलन टेट्राड बना था, इससे 4 माइक्रोस्पोर बने थे। अब एक माइक्रोस्पोर में आपका जब माइटोटिक डिवीजन हुए 2, तो एक पॉलन बनी। तो यहाँ पर आपका एक पॉलन बनने के लिए आपका एक माइक्रोस्पोर था, अगर मुझे 100 पॉलन चाहिए तो कितने माइक्रोस्पोर होंगे 100 होंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉमन सेंस है 100 आ जाएगा। अब आते हैं मियोसिस कितना लगेगा, ठीक है। तो मियोसिस में हम बात करते हैं कितना लगा। सो नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछा मियोसिस कितना लगेगा, टोटल मियोसिस अगर मुझे देखना है तो मैं वही करूंगी कि पॉलन 100 पॉलन बनाने के लिए आपको कितना मियोसिस करना पड़ा, और फिर आपको 100 एग बनाने के लिए आपको कितना मियोसिस करना पड़ा। तो यहाँ पर बात करते हैं 100 पॉलन के लिए। आपका जब एक मियोसिस हुआ था तो उससे बन रहे थे 4 माइक्रोस्पोर, और ये चारों के चारों क्या बनाएंगे पॉलन। तो एक मियोसिस से आपका बनता है 4, ठीक है। तो 100 कितने से बनेगी ये देख लेते हैं। देखो एक मियोसिस से आपका बना 4 पॉलन, तो एक पॉलन कितने की बनी 1/4, और मुझे चाहिए 100 पॉलन, तो 100 पॉलन क्या हो जाएगी 1/4 इंटू 100। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे 25 मियोसिस लगेंगे। अब एग की बात करते हैं। एग में एक मियोसिस से एक ही एग बन रहा था, तो एक मियोसिस से कितना बन रहा है, एक ही एग बन रहा है। तो यहाँ पर आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए यहाँ कितना 100 एग। तो 100 एग अगर आपको चाहिए तो 1 इंटू 100 हो जाएगा। तो यहाँ कितने होंगे 100 मियोसिस होंगे। तो यहाँ पर 25 प्लस 100 कितने मियोसिस हुए टोटल 125 हुए। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 125। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच सीड्स आर फॉर्म्ड इफ हैविंग 100 MMC फॉर फीमेल। अगर 100 जो है वो क्या है MMC फीमेल के लिए, और 500 MMC है, इसे मेल कर लो।
मेल के लिए। अब देख लेते, तो आपको बताना है सीड कितनी बनी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते, इन्होंने कहा हमारे पास 100 MMC है, किसके लिए, फीमेल के लिए है, ठीक है। और आपको पता है 1 MMC से 1 एग बनता है, तो 100 MMC से कितना बना, 100 एग बना, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने कहा 500 MMC है, किसके लिए, मेल के लिए। 500 MMC है, किसके लिए, मेल के लिए। 1 MMC से आपका कितनी पॉलन बनती हैं, 4 पॉलन। तो यहाँ पर 500 MMC, एक पॉलन कितने की बनी, पॉलन। तो 500 MMC कितनी बनाएंगी भाई, एक अगर 4 बना रही तो 504 इंटू 500 इतनी पॉलन बनाएगी। 5 ये कितना हो जाएगा, दिस वन 2000 बन गई, तो हमारे पास 2000 पॉलन है, ठीक है। अब यहाँ देखो 100 एग हैं और 2000 पॉलन है बच्चा मेरे पास, लेकिन मुझे बताना है यहाँ सीड कितनी बन सकती है। अब आपका एक सीड बनने के लिए क्या चाहिए आपको, एक पॉलन और एक एग। तो यहाँ पर जितने एग है उतनी पॉलन चाहिए, तो एग कितने मेरे पास 100, तो इसमें से कितनी पॉलन इसके साथ फ्यूज हो सकती है, 100 पॉलन। और सीड कितने बनेंगे फिर, 100 ही बनेंगे। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100। अब एक ट्राई करना, इसे करना आप 500 फीमेल, खुद से ट्राई करना, और इसे करना आप 100 मेल, ऑपोजिट कर लेना, और एक क्वेश्चन और ट्राई करना। नाउ नेक्स्ट इज, इफ अ प्लांट हैव 36 क्रोमोसोम, अगर एक प्लांट में 36 क्रोमोसोम है, तो आपको क्रोमोसोम नंबर बताने हैं, किसमें, उसके स्टेम में, एंथर में, फ्रूट में, सीड में, एंडोस्पर्म में, सिनर्जिड्स में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो एक प्लांट हमें पता है कैसा होता है, डिप्लॉइड, इसके अंदर 36 क्रोमोसोम है। पहले तो जरूरी होता है आप उसके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम का सेट निकालें। तो अगर 2n 36 है तो n क्या हो जाएगा, 18 क्रोमोसोम हो जाएगा, 36 है ना, 18 क्रोमोसोम हो गया। अब आपसे यहाँ पर पूछा उसकी स्टेम, भाई प्लांट का कोई भी पार्ट हो, स्टेम हो, लीफ हो, ब्रांच हो, वो सारे क्या होंगे, 2n होंगे। तो अगर n 18 है तो 18 इंटू 2 कर दो, यानी उसके स्टेम में कितने होंगे, 36 क्रोमोसोम। फिर आपसे पूछा है उसका एंथर, तो एंथर भी क्या है, 2n ही है। जब तक कहीं पर मियोसिस ना हो तब तक प्लांट से जुड़ा हुआ हर पार्ट जो है वो डिप्लॉइड ही रहेगा। एंथर भी 2n है, सेम निकल जाएगा। फिर आपसे पूछा है फ्रूट यानी ओवरी बचा, तो ओवरी में भी मियोसिस तो कहीं नहीं है, मियोसिस तो कहाँ होता है, ये ओवरी है, फिर ये ओव्यूल है, ओव्यूल में भी कुछ नहीं होता, यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। बाकी सारे पार्ट्स तो जो प्लांट है वैसा ही होगा, प्लांट अगर डिप्लॉइड तो ये सारे पार्ट डिप्लॉइड है। तो फ्रूट भी क्या रहेगा, 2n, आप खुद निकालेंगे। देन आते हैं सीड कौन बना रहा है, ये ओव्यूल, और इस ओव्यूल के सेल्स के क्रोमोसोम नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि यहाँ मियोसिस नहीं हुआ है, तो ये भी क्या रहेगा, 2n रहेगा। फिर आते हैं एंडोस्पर्म हमें पता है ट्रिपल फ्यूजन है। एंडोस्पर्म की पोलैरिटी क्या होती है, एंडोस्पर्म होता है आपका 3n, तो n हमें पता ही है, 3 इंटू 18 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर आते हैं सिनर्जिड, एंटीपोडल, कहीं पर भी पूछा हो तो ये मियोसिस से बना है, ये एम्ब्रियोसेक पूरा मियोसिस से बना है। तो बच्चे आप ये ध्यान रख लीजिए, जहां मियोसिस से बना है वो सारे आपके हैप्लॉइड होंगे, और मियोसिस से आपका क्या बनते हैं, मियोसिस से बनते हैं गैमेट। यानी कि कहीं पर भी आपका अगर पूछा है पॉलन को, एग को, और एग के साथ एम्ब्रियोसेक के प्रेजेंट हर सेल को, जैसे एंटीपोडल हो गया, सिनर्जिड हो गया, तो ये सारे आपके क्या हैं, n है। इसके अलावा आपका कहीं पर भी पूछा है, अगर इंटेग्यूमेंट पूछा है, इसके अलावा मियोसिस कहीं नहीं होती, बस इनमें हो रही है। इसके अलावा अगर आपसे इंटेग्यूमेंट पूछा है, न्यूसेलस पूछा है, फ्रूट पूछा है, ओव्यूल पूछा है, ओवरी पूछा है,
देन आपका कुछ भी पूछा है ये सारे आपके क्या रहेंगे 2n। एक जगह पर आपका है जहां एंडोस्पर्म पूछा है वो आपका क्या है 3n। तो ये सारे जायगोट पूछा है तो वो भी 2n होता है। ये आपको पोलैरिटी ध्यान रखनी, जहां मियोसिस नहीं हुआ है वो सारे 2n है। तो सिनर्जिट्स भी क्या हो जाएंगे, सिनर्जिट्स हो जाएंगे n, यानी कि आंसर डायरेक्ट 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक मेल प्लांट है जिसमें 16 क्रोमोसोम है और फीमेल प्लांट है जिसके अंदर 24 क्रोमोसोम है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, क्वेश्चन क्या है, मेल प्लांट है जिसके अंदर 16 क्रोमोसोम है। मेल प्लांट कैसा है 2n, 2n इसमें क्या है 16, और फीमेल प्लांट है जिसके अंदर 24 क्रोमोसोम है। तो फीमेल प्लांट भी कैसा है 2n और इसके अंदर कितने हैं 24। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्रोमोसोम नंबर सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि पोलर सेल को ही सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म में आपको निकालना है। तो बच्चे यहाँ पर सबसे पहले आपको हमेशा क्या करना है, n निकाल लेना है। तो इसका n क्या हो जाएगा, इसका n हो जाएगा 8 और इसका n क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12। ये निकल गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म कैसे बनता है, एंडोस्पर्म की बात करते हैं। ये डायरेक्ट नहीं निकलेगा, थोड़ा सा टिल्ट है क्वेश्चन। एंडोस्पर्म में आपका एक होता है मेल गैमेट और एक होता है, सॉरी, एंडोस्पर्म कैसे बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से। ट्रिपल फ्यूजन में आपका एक तो मेल गैमेट है और वो किसके साथ, पोलर सेल के साथ फ्यूज करता है। तो पोलर सेल किसका है, एम्ब्रियो सेक का है। ठीक है, फीमेल का है। तो मेल तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेल, एक मेल के अंदर क्या है, ये 8 है, इंटू पोलर सेल किसका है, फीमेल का, और ये पोलर सेल क्या होता है 2n। तो 2n फीमेल का क्या हो जाएगा 24। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 24। अब जब ये 2n और ये n फ्यूज करेंगे तो आपका एंडोस्पर्म बन जाएगा 3n, यानी इन दोनों का आपको मल्टीप्लाई कराकर एंडोस्पर्म जो है वो काउंट कर लेना है। ठीक है, फ्यूजन होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, बच्चा 2n प्लस n होता है, ये प्लस आएगा तभी तो 3n बनेगा। 2n इंटू n नहीं है, 2n प्लस n है, ध्यान रखना है छोटी छोटी चीजें। तो यहाँ पर इन दोनों को प्लस कर लोगे तो आपके पास ट्रिप्लॉइड आ जाएगा। देन पूछा सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी कि पोलर सेल के बारे में। और पोलर सेल किसका होता है, फीमेल गैमेट का। तो पोलर कैसा है 2n होता है और फीमेल में n कितना है 12 है, तो 2 इंटू 12 हो जाएगा, यानी 24। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, 3 आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको बहुत सारे लिखवाए हैं, कोई भी डाल सकते हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो ये डाल सकते हैं। देन आपका डाइक्लिनी बोलते हैं इसको, यूनिसेक्सुअल फ्लावर को ही। इसके अलावा आप डाल सकते हैं हेट्रोस्टाइली, स्टाइल की डिफरेंट पोजीशन हो। आप डाल सकते हैं कि हर्कोगैमी डाल सकते हैं, बैरियर प्रेजेंट हो। ठीक है, आप यहाँ डाल सकते हैं रिसेप्टिविटी टाइम अलग अलग हो, तो डिफरेंट रिसेप्टिविटी टाइम यानी कि एसिंक्रोनस रिसेप्टिव टाइम हो, तो आप वो वाला पॉइंट डाल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये सारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आपको डिटेल में कराए हुए हैं। और प्योर लाइन जनरेट होगी तो क्या प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ प्रॉब्लम आती है इनब्रीडिंग डिप्रेशन की। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन में आपका क्या होगा, आपका क्रॉप की क्वालिटी जो है, क्वालिटी एंड उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ये आपका असाइनमेंट दोनों मैंने डिस्कस कर दिया है बच्चा। यहाँ पर कुछ टर्म्स थी, एक बच्चे ने, ऋषभ ने पूछी थी, तो ये टर्म्स आपका एनसीईआरटी में आएगी, इन्हें कंफ्यूज मत होना। कुछ कुछ मैं बता देती हूँ जल्दी जल्दी। ये जर्म स्पोर दिया था, वो जर्म पोर है। जर्म पोर हमने बात की है एक्साइन का वो पार्ट, सॉरी पॉलन का वो पार्ट जहां पर क्या हो, एक्साइन एब्सेंट हो, और ये वो पॉइंट होता है जहां से
पॉलन ट्यूब जो है वो क्या होगी, एमर्ज होगी। तो उसे हम पॉइंट को जर्म पोर कहते हैं। एक पॉलन में जर्म पोर जो होते हैं मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही होगा, मल्टीपल नंबर में हो सकते हैं। प्रीमोर्डिया क्या होता है, प्रीमोर्डिया किसी भी चीज की अर्ली स्टेज को कहते हैं। जैसे अगर लीफ निकलने वाली होगी तो हम कह देते हैं लीफ प्रीमोर्डिया, यानी कि एक्सिल से यहाँ पर बड है और ये बड लीफ प्रीमोर्डिया का है, लीफ अराइज होगी। अगर यहाँ पर बड प्रीमोर्डिया में कह रही हूँ तो यहाँ पर आपका फ्लावर का बड है। तो प्रीमोर्डिया अर्ली स्टेज है जिससे आपके जो भी पार्ट है, कोई भी डिफरेंट पार्ट जो शूट के वो अराइज हो सकते हैं। लीफ प्रीमोर्डिया हो सकता है, बड प्रीमोर्डिया हो सकता है, ठीक है। तो अलग अलग है, अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कहते हैं इसे हम। देन यहाँ पर एक टर्म था सीड सेट। सीड सेट का मतलब होता है कि वहां पर सीड बनेगा, ठीक है। सीड बनेगा के लिए हम सीड सेट बोलते हैं, सेट होना यानी बनेगा, वहां पर सेटिंग होगी सीड की। टेसल्स मैंने बताया है एनसीईआरटी में या ऑपोजिट है, एक्चुअल में ये मेल फ्लावर होता है मेज का, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी टेसल उन्होंने डिफाइन किया है कि टेसल क्या होता है, ये स्टाइल एंड स्टिग्मा कहते हैं मेज के स्टाइल और स्टिग्मा को, कि ये जो भुट्टा होता है इस भुट्टे में आपको ये जो बाहर ब्राउन हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं इन्हें टेसल्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और वो कहते हैं इस भुट्टे में सीड बन रहे हैं यानी कि इसके अंदर फीमेल फ्लावर है, फ्रूट बन रहा है ना, तो फीमेल फ्लावर है, ओवरी है यहाँ पर, तो ये आपका फीमेल फ्लावर का पार्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ स्टिग्मा है और ये स्टाइल है। तो दिस इज स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ मेज फीमेल फ्लावर। बट इन एक्चुअल में ये मेल फ्लावर होता है, ये फीमेल नहीं होता, एनसीईआरटी में उल्टा है। डायोसी कल मैं टर्म एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपका वीडियो में। डायोशियस के लिए टर्म है डायोशियस, और डायोशियस को ही हम यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स नहीं लिखवाया बच्चा मैंने। यूनिसेक्सुअल प्लांट जैसे कुकुम्बर है, पपाया है, डेट पाम है, खजूर वगैरह। यहाँ पर आपका मेल और फीमेल पार्ट, यूनि मतलब होता है एक, मेल और फीमेल प्लांट अलग होंगे। एक प्लांट में एक ही सेक्स हो, दैट इज यूनिसेक्स, ठीक है। एक प्लांट में एक ही सेक्स हो, या तो वो प्लांट मेल प्लांट होगा या फिर वो फीमेल प्लांट होगा। देन आपका एक टर्म थी ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। आउटब्रीडिंग डिवाइस का पॉइंट है बच्चा कि वहां पर ऑटोगैमी सेल्फ पॉलिनेशन अगर होना है, फ्लावर में फ्लावर है, अगर इसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होना है तो सिंक्रनी यानी कि बराबरी पर चलना चाहिए, सिंक्रोनस होना चाहिए, दोनों साथ साथ हो। क्या क्या, पॉलन रिलीज की यहाँ एंथर से पॉलन रिलीज भी साथ में हो और इसी टाइम पर ओवरी भी मैच्योर हो जाए, ओवरी भी क्या हो जाए, रिसेप्टिव हो जाए, तभी ये पॉलन यहाँ जर्मिनेट कर सकती है। यहाँ से पॉलन निकल गई लेकिन ये अभी मैच्योर ही नहीं हुई है तो ये पॉलन यहाँ से उड़ जाएगी, यहाँ पर आपका पॉलिनेशन नहीं होगा। तो अगर आपको सेल्फ पॉलिनेशन कराना है तो फ्लावर के अंदर जो पॉलन रिलीज का टाइम है और स्टिग्मा के मैच्योर होने का टाइम है वो सिंक्रोनी यानी कि साथ साथ होना चाहिए, ठीक है। और कुछ और क्वेश्चंस थे बट वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुके हैं, तो कभी और टाइम मिला देन आई डिस्कस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।